This conference will now be recorded. So is my screen visible? Yes. Okay, so first we will go to the basic topics of the Excel, and we'll check that how much you are aware of, so that then we will start moving to the advanced topics. Mm-hmm. Okay. Hmm. Okay, the first one is okay. ये अपने if I go with Hindi English, it's okay. It's okay, completely okay. Okay, perfect. So let's start with the copy paste option. So Control C, Control V, everyone knows, but Hmm. have you checked these different options, paste options? पेस्ट ऑप्शंस पेस्ट स्पेशल में मैंने मतलब नॉट ऑलवेज बट हाँ समटाइम्स जब डेटा आया था ऐसा तो एक आध बार किया है मैंने पेस्ट स्पेशल पर बट नॉट एग्जैक्टली श्योर कि what exactly the paste special was meant to be. I was just told कि just go and do this paste special and you will get the result. Right. So paste is special. Either you can go for this one or you can use these different options. Right. Hmm. So whenever you click, when you press Control C, then you will Hmm. find these different options. Now I'm going to Paste. the paste options so that you can clearly understand. Now Hmm. here I have three different cells, and this cell is which contains the formula, adding these two numbers, right? Hmm. और इसको मैं एक format apply कर रखा, that means background is the green color and then Hmm. एक rupees का वो add कर रखा है, right? So this is the Okay. format. Now suppose I'm Hmm. copying this. Now I'm telling showing you that how different option will work. So if I copy Hmm. this and then I go into the uh, here and then go into home. Now this one, the first option is simply paste option, right? So it Hmm. will paste, not the formula, Okay. or it will, what it will do? It will paste everything. Paste means paste. It will do everything. हाँ वो तो जितना जो हमने पेस्ट किया वो के वो वहीं पे वहीं वो जाकर पेस्ट कर देगा राइट. वहीं का वहीं हो जाएगा, right? Now if I go into the second option, which is the paste formulas, so it will paste the formula. So if I go into here, so it will, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला तो कॉपी हुआ है, राइट? बट कोई फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ है. फॉर्मेट नहीं हुआ राइट राइट फॉर्मेट वो जीरो में आ अगर आप गया इसमें नॉर्मल. देखोगे, राइट, वो यहाँ पर जीरो में आ गया, जबकि यहाँ पर इसने एवरीथिंग इट विल कॉपीड. राइट बट फॉर्मूला नहीं किया उसने. हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर भी फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है. तो ओनली डिफरेंस इज कि और कोई वैल्यू, और सॉरी, और कोई फॉर्मेट कॉपी नहीं किया. But if I go into the this one which says formulas and the number formatting, that means it will copy both formula as well as the number formatting. So that means ओके. इसने अब यहाँ पर या बट कोई सेल का फॉर्मेट कॉपी नहीं किया. हाँ राइट. ग्रीन कलर विजिबल नहीं है. Now when you go into the another option which says that you have to keep the source formatting, that means it will copy again each and everything. ओके मतलब फॉर्मूला भी कॉपी होगा सेल का फॉर्मेट भी कॉपी होगा सेल का बैकग्राउंड भी कॉपी Cell होगा जो सेल हो रखा right, है. ओके. right. Now if you go into the paste, but it says you don't have to copy any border, so it will again same. ओके कंप्लीट कॉपी Right? करेगा बस बॉर्डर्स नहीं आएंगे. बॉर्डर्स नहीं करेंगे. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ था, बाकी राइट. इसमें ऑप्शन में और इस ऑप्शन में आ रहा था, बट यहाँ पर वो बॉर्डर नहीं आया. हाँ जी हाँ जी. Right? Now if you go into the next option which says keep source column width, so it will just keep the source column width same. ओके जितना हमारा यहाँ अगर पर है आप उतना. राइट, सो अगर आप भी आप देखोगे तो इस कॉलम का width कम है. हाँ राइट. But if I want to use this, automatically it will increase the width. देख रहे हो? यस यस. So if I use यस. this, it will change the source column width. Right? Now, if I copy all this, and then there is an option called transpose. So transpose means it will convert your rows into columns or columns into rows. ओके. So here
the values are in 3 different rows, Right. right? If I Hmm. use this and then I say transpose it, so it will transpose Value. the values, Okay. convert the values from rows to columns, Hmm. right? So अगर आप यहाँ Right. देखोगे ना, यहाँ पर इसने फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा ये. There Right. is no change in the Formula. formulas or in everything, just transpose करेगा. ओके. Now, हाँ, लेकिन हमारा फॉर्मूलाज वगैरह में मतलब कुछ चेंज नहीं आया. इसने right, जैसा उठाया वैसा के वैसा फॉर्मूला भी ले लिए. नहीं कॉरस्पॉन्डिंगली उसने वैल्यूज चेंज कर देगा, बट आपके रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. हाँ, वही रिजल्ट में हमारा एंड रिजल्ट तो बिल्कुल सेम ही है जो हमारा सेम इसमें ही भी रहेगा. था. राइट. Right. ओके. Now, the next option is that you have to copy the values only. So it will just copy the value. No ओके. formatting, no number formatting, no cell format, nothing. Just value, no border, nothing. Right? Even इसने जो फॉर्मूला था वो भी कॉपी नहीं किया. ओके. राइट. इसने सिंपली उठा के वहां पर जो वैल्यू है वही रख दी. Right. Okay. So sometimes if you are working with formula but आपको end result को ही show करना है, then you have to use the paste values instead of the paste option. Otherwise वो Okay. different, क्योंकि यहाँ पर तो इसने 0 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो correspondingly उसने सेल का रेफरेंस चेंज कर दिया, जो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रेफरेंसेस कैसे हम यूज करते हैं. Okay. Right. Similarly, paste value and then there is a paste values and the number format. That means you want to keep the number format as is. So अगर आप मुझे उसमें डॉलर साइन या ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें कोई डेसिमल वैल्यू शो कर रहे हो, that will also be same. But हाँ, कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा, only the values. Okay. राइट. सो यहाँ पर केवल वैल्यू हो रही थी, इसमें कोई नंबर फॉर्मेट और सेल फॉर्मेट कॉपी नहीं था. इसमें सेल फॉर्मेट कॉपी नहीं है, बट नंबर फॉर्मेट विल रिमेन सेम. राइट. 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 ऑन द थर्ड ऑप्शन इज जहाँ पर वी आर कीपिंग एवरीथिंग. सो यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी नहीं हो रहा है, लेकिन केवल वैल्यूज कॉपी हो रहे हैं. अगर इन तीनों को में डिफरेंस देखोगे, सो दिस इज द ओनली वैल्यू, दिस इज वैल्यू विद वैल्यूज. नंबर फॉर्मेट, और इसमें सारा फॉर्मेट कॉपी. सेल का आपका इंटीरियर भी इसमें कॉपी हो गया है. राइट. राइट. सो ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज कि ये आपका फॉर्मूला कॉपी करेगा. ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज, दैट विल नॉट कॉपी एनी फॉर्मूला. राइट. जो नेक्स्ट आता है दैट इज द पेस्ट ऑप्शन बट ओनली विद द फॉर्मेटिंग. तो दैट मींस अगर मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने कोई फॉर्मूला कोई वैल्यू नहीं करेगा. नाउ इट विल वर्क ओनली विद फॉर्मेट. ओके. मतलब आप कहना चाहते हो कि जैसे जो अगर इंटीरियर और बॉर्डर हैं सेल के तो बस खाली वही आ जाएंगे यहाँ पर. राइट. 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 तो सपोज आपने कहीं किसी सपोज हेडिंग कर रहे हो और एक हेडिंग में आपने डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फॉर्मेट, बॉर्डर स्टाइल वो सब ऐड किया है. नाउ आई वांट टू अप्लाई दैट फॉर्मेट इनटू अदर सेल्स विदाउट कॉपिंग दी नंबर्स और सेल कंटेंट. उस केस में आपको थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है, विच इज द फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन, अदर पेस्ट ऑप्शंस. यहाँ पर आप फॉर्मूला भी कॉपी कर रहे हो, वैल्यू भी कॉपी कर रहे हो. यहाँ केवल वैल्यू कॉपी कर रहे हो, फॉर्मूला कॉपी नहीं कर रहे. यहाँ पर नहीं आप हो रहा है, फॉर्मेटिंग के साथ काम कर रहे सिर्फ हो. फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है. ओके. फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है. राइट. उसमें वैल्यू और उसका मतलब नहीं रह जाएगा. नाउ देन दिस नेक्स्ट ऑप्शन इज सेज you are creating a link, right? You are pasting a link. So if I click this, so it will create a link. So if you say this B33 B3, इसका ओके. एक ये लिंक बन गया. रेफरेंस बता रहा है ये ये कि ये. रेफरेंस बन गया. ओके. ओके. राइट. दैट मींस मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूंगा, वो चेंज यहाँ पर भी विजिबल होगा. यहाँ पर भी हो जाएगा. ओके. और तो मैंने एक मतलब दिस लिंक विल बना दिया. लेट्स से कि बहुत सारा डेटा है, मुझे किसी को कुछ बताना है कि मैंने कहाँ से उठाया है, तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रेफरेंसिंग कि भाई ये यहाँ था तो मैंने इसे यहाँ था. ओके. राइट. आप उसको रेफरेंस की तरह शो कर सकते हो. बट अगर ओके. आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी हमने किया था,
यहाँ पर भी एक रेफरेंस लिया था। यहाँ पर रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी हो गया था, यहाँ पर मैं केवल रेफरेंस लेके आ रहा हूँ, और वो हाँ भी इस सेल का। गॉट इट। ओके, एक मिनट, द आप इस पर नेक्स्ट क्लिक इज कीजिएगा, जो भी हमने कॉपी किया है इस पर क्लिक कीजिएगा। दिस वन। इस पर, हाँ। अच्छा ठीक है, जब हमने इस पर क्लिक किया तो ऊपर जो फॉर्मूला बार है उसमें $B$3 करके लिखा आ रहा है। ओके, ये राइट, रेफरेंस दे रहा है B3 का। राइट, उसका रेफरेंस ओके होगा। ओके। Okay, now next is the images. Now next to is for images, right? So ये क्या करेगा, आपका एक पिक्चर क्रिएट कर देगा। So whatever cell is there, उसका एक पिक्चर क्रिएट कर दिया। ओके। So sometimes अगर आपको मुझे मतलब एज अ पिक्चर आपको शो करना है, डोंट वांट टू शो फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, सो मैं इसको, जैसे हम कई बार होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसमें हमें एज ए इमेज रखना है, सो यू कैन डू दैट। ओके। बट इसमें अभी अगर आप देखोगे, मैं सपोज इफ आई मेक एनी चेंज इन द नंबर, राइट, तो इस इमेज में कोई फर्क नहीं, ये इमेज तो बन गया। ओके, वो तो इसका मिरर बना, तो अब हमने जो चेंज वहां करना है वो यहाँ तो होगा नहीं, इसका कोई मतलब। वहाँ यहाँ होगा नहीं, लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं आई वांट दैट कि अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करूँ मेरी इमेज में भी चेंज होना चाहिए, ओके दैट केस यू कैन डू द लिंक्ड पिक्चर विच इज द लास्ट ऑप्शन। ओके। सो अब अगर मैंने ये लिंक पिक्चर को कहीं भी अपने कहीं पे भी रखा हुआ है, और अब अगर मैं इसमें कोई चेंज करूंगा 45, so the change will happen here also. ओके। ऑलराइट, इसने रेफरेंस भी ले लिया इसका मतलब इस वाले में, और हमने पिक्चर के फॉर्मेट में नहीं भी ले इसमें, लिया है इसको। हाँ राइट, इसमें रेफरेंस ले लिया बट एज एन इमेज। हाँ, पिक्चर के मतलब इमेज के फॉर्मेट में रेफरेंसिंग भी कर रही है ऑल हाँ टुगेदर। राइट, सो दैट मीन्स अगर आपको किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या सॉरी पावर पॉइंट में नहीं, सपोज एक्सेल में ही अगर आप दिखा रहे हो और इन डिफरेंट वे इसको, सपोज किसी एक्सेल में दिखा रहे हो, तो आप सिर्फ इमेज के फॉर्मेट में उसको दिखा सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये इमेज बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ओके। बिकॉज इट्स अ लिंक्ड, right? So that is the paste options, different paste options available in Excel. Okay, now इसके बाद आप मुझे बताते जाना जो आपको क्लियर है, राइट? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, you know that just to copy the format. मुझे एक जैसे बार मैं, एग्जैक्टली ओके, सो सपोज करो कि यहाँ पर ही हमने I said this one और मैंने यहाँ पर इसके डिफरेंट में फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, सपोज करिए, राइट? So मैंने यहाँ पर, and I want to apply the same format in a different cell. So I will ओके। select the cell, click on the format pointer option, और अगर आप किसी में भी अप्लाई कर दोगे, so automatically वो फॉर्मेट आप दूसरी सेल पे अप्लाई कर दोगे। ओके, तो मुझे इसे बार बार फॉर्मेट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बार बार फॉर्मेट चेंज, सेम फॉर्मेट लेके आना है, सेम फॉर्मेट लेके आना है, वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ राइट, आपका टेक्स्ट कंटेंट, सेल कंटेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपका आउटपुट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, द ओनली थिंग इज वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट, राइट? तो कई बार आपने जैसे सपोज 3-4 चेंजेस करके कि नहीं नहीं मुझे ऐसे शो करना है, पहले मैं एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, देन अब आपको फाइनल हो गया कि ठीक है, नाउ दिस फॉर्मेट आई हैव टू अप्लाई, सो आई विल जस्ट गो सेलेक्ट एंड देन ओके डन, राइट? सो दैट इज द फॉर्मेट पेंटर, अगर इफ यू वांट टू पेंट द फॉर्मेट। नाउ द नेक्स्ट इज द wrap text. So wrap text is we are using when we want to wrap the text in a single cell. So अब अगर आप 14 में देखोगे तो सेल कंटेंट जो है वो सेल से ज्यादा बड़ा है, राइट? अब इसके दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको डबल क्लिक करूं ऐसे और इसको मैं ऐसे अप्लाई करूं, राइट? सो दैट द सेल विथ विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सेल कंटेंट, जितने उसमें अल्फाबेट्स हैं उसके बेसिस पे कर देगा, बट आई डोंट वांट टू चेंज इट, मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा हो, उस केस में यू कैन यूज रैप टेक्स्ट, सो दैट मीन्स आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा विद इन दी सेल, राइट? नाउ एक आता है सेम, हमारा आता है मर्ज सेल ऑप्शंस,
ये मर्ज सेल ऑप्शंस होते हैं ना। मर्ज सेल्स हम्म कैसे करते हैं, वर्क करते हैं। सपोज करो आपका ऐसा कुछ डेटा है, जिन जिन फैप फैप like this, and I said month sales, and then I said 56. Now I want to merge these cells, तो उस केस में आप इसको merge कर सकते हो। ऑलराइट, मतलब सेम था से दो अलग अलग। ओके हाँ, right. So you can merge the cells. मैं इसका border लगा देता हूँ so that clearly visible. So अब अगर आप देखोगे तो ये merging हो गई है। Similarly, I want to merge this also, so I can use this merge center. ओके ओके गॉट इट। Right? So राइट। ये आपका merging cells का। Now suppose करो आपका content कुछ ऐसा है। I said Excel features, right? और I said मैं इसको ऐसे merge कर देता हूँ, so इसने merge कर दिया। Suppose करिए मैं इसको यहाँ copy कर रहा हूँ। Now if you see ये वाला तो मेरा दो columns में merge है, right? But इनके जो नीचे के कंटेंट है वो सब एक एक में है। Now I want to make हाँ it कि ये सारे भी है ना सब दो रो में हो जाएं, merge कर दें। ओके अब either I can select this one and then say merge in center ऐसे, but it will take time. So merge in राइट center में अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, so it says merge across, merge cells, unmerge cells. So जो merge across है, so ये क्या करता है कि automatically if I select this ऐसे and then go into merge across, तो ये ओके सब सेल को इंडिविजुअली मर्ज कर देगा, ओके राइट? सो मर्ज इन सेंटर और जो आपका मर्ज अक्रॉस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके ओके सो यहाँ पर ये दो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू go into paste options, now suppose if I come into this clear option, now if you see this clear all, clear format, clear contents, clear comments, clear hyperlinks, ये different options हैं यहाँ पर। राइट Now suppose I said मैं इसको select करता हूँ and then I said clear all, so what it will do, it will clear everything. Everything means everything, फॉर्मूला भी फॉर्मेट भी सब formula कुछ चला भी, गया। format भी, text content में whatever जो यहाँ पर था सब कुछ clear हो जाएगा। But suppose you don't want to clear everything, you want to clear only the format options, so you can select clear formats. So now it will not remove the formula, but जितना भी सेल का फॉर्मेट था और नंबर का फॉर्मेट था वो सब इसने क्लियर कर दिया। ओके सिमिलरली अगर आप क्लियर कंटेंट में जाते हैं तो ये सिर्फ कंटेंट जो है उसको क्लियर करेगा, बट आपका सेल फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट विल रिमेन सेम। तो अगर मैंने 456 किया तो इसने ऑटोमेटिकली वो रुपी वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, ओके डेसिमल अप्लाई कर दिया, ग्रीन कलर एज इज रह गया। सिर्फ इसने जो किया था वो क्या किया था, इसने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को क्लियर किया था, राइट राइट? ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लियर कमेंट्स। सो कई बार क्या होता है कि हम जो भी वट एवर एक्टिविटी आर डूइंग, सपोज यू वांट टू अप्लाई समथिंग, सो सपोज मैं लिखता हूँ ऐसे 1200 प्लस 500 प्लस 600, सपोज आई मेंशन दिस, बट आई सेड यार ये है ना मुझे बाद में ध्यान नहीं रहेगा कि ये 1200 किसके लिए था, 500 किसके लिए था, 600 किसके लिए था। So Excel will give you feature जहाँ पर you can insert a comment. ओके So when you click on insert comments, so here you can mention कि okay 1500 is suppose I received from resource A, 600 I received from resource B, 300 I received from resource C, 1200, 500
15, Okay. 60, 600, 100. Means the number are different, but yes. So now every time if I want to check ये 3 नंबर कहाँ से आए थे, मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा, automatically it will show. तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये 3 नंबर मैंने क्यों ऐड किए थे, राइट. सो ये जो कमेंट्स हम कर रहे हैं ना, अगर सपोज नाउ इन फ्यूचर यू वांट टू रिमूव दिस, कि नहीं आ रही तो मैंने अपने लिए किया था, आई डोंट वांट टू शो टू एवरीवन, so I can remove this comments also, Oh, okay. right. You don't have to clear everything, you just have to clear the comments, right. तो इस तरह से there are different option. Clear hyperlink का option है, जो कि हम जब hyperlink पढ़ेंगे then I will show you कि कैसे हम कर सकते हैं. But again if you want to show, so जैसे मैंने Google यहाँ पर ऐसे लिख दिया, and then you can create a hyperlink. So suppose I said link, and then you said okay www.google.com. So automatically एक hyperlink बन गया. That means if I click on this, it will open the Google site. Okay. Right, so you can create a hyperlink in Excel. Now suppose in future you said no, I don't want that, so I can clear the hyperlink. That means the text will remain same, but now there is no link. All right. अगर hyperlink होगा तो जैसे आप इसके ऊपर ले जाओगे, it will change to hand cursor. Oh, okay. अगर देख रहे हो hand cursor में Right. change हो गया and it will show this. But if I remove this clear hyperlinks, now there is Only nothing. text. Okay. It's a text. Right. Same ये जो आपका है, ये यहाँ पर भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे वो whenever you are typing clear hyperlink, तो hyperlink के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है. So that is called clear options, जो हमारे पास different अवेलेबल यहाँ पर होते हैं. Now in the Excel you can work on different rows and columns. So हम यहाँ पर ही Excel जो होता है different options देता है. So suppose I want to insert a new column in between these two, E and F. तो जिन दो कॉलम्स के बीच में अगर आपको इंसर्ट करना है, सो जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें यू हैव टू से इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट. So automatically it will insert a column. Okay. Now the other option is you can say Control Shift and Plus, which is the shortcut. Okay. Control Shift and Plus. Plus. So अगर मैंने इसको select किया and then I said Control Shift Plus key, so that means it will insert a new. Okay. If I press Control minus, it will delete the selected column. Okay. Control minus. So All Control right. minus is to delete a column. Control Shift plus is for adding a new column, inserting a new column. Right. Now when you repeat, suppose you want to insert a 10 columns. Right. So या तो मैं क्या करूंगा, बार बार Control Shift plus की प्रेस करूं. But suppose आपने एक बार कॉलम को इंसर्ट किया, then Excel will give you a functionality. Whenever you will press F4 key, F4 function key, F4. Okay. F4, so it will repeat the last action. So अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं F4 की प्रेस कर रहा हूँ. So F4, 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 F4. So it will repeat the last action. Okay. Right. अब जैसे मैंने पहले कंट्रोल माइनस ये मैंने किया तो एक कॉलम डिलीट हो गया. अब नाउ आई एम प्रेसिंग F4, 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 लास्ट एक्शन को रिपीट कर रहा है. ओके. बट दैट इज नॉट फॉर ऑल एक्शन. ये कुछ स्पेसिफिक एक्शन, जैसे हम बार बार हम एक्शन ये इंसर्ट कॉलम करना है, इंसर्ट रो करनी है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करनी है, बहुत सारी रो हैं. And then you can एक बार डिलीट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इंसर्ट करो, या कंट्रोल माइनस से एक बार रिमूव करो, and then you can use F4 key. Okay sir. Right. So that is the shortcut key. Similarly you can add a new column. उसके लिए हमारे पास insert, तो एक नया रो इंसर्ट हो गया. एक ब्रश आया है यहाँ, वो उस टाइम भी दिखा था. मतलब इसका क्या फंक्शन है, जो जहाँ से हमने इंसर्ट किया यहाँ पर एक पेन ब्रश नजर आता है. ये पेन ब्रश आ गया. नाउ इट विल शो कि आपको इसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है.
जैसे अभी ओके मैंने एक जैसे मैंने एक नया ओके लेट मी चेक। मैं सपोज करिए मैं यहाँ एक इंसर्ट करना चाहता हूँ रो, राइट। व्हेन यू सेड हम्म कंट्रोल शिफ्ट इन प्लस, तो हम्म अभी आपने देखा ये इसने क्या किया, येलो वाला ऑप्शन ले लिया हाँ जी हाँ जी ऑटोमेटिकली, राइट। हाँ जी वाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाला जो रो है उसका फॉर्मेट ले लेगा। बट यू सेड नहीं 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 ओके यार, मेरे को फॉर्मेट तो नीचे वाले का चाहिए, ये तो हेडिंग हम्म है मेरा। सो आई सेड ओके, यहाँ पर जाओ एंड देन आई सेड फॉर्मेट सेम एज बिलो। ओके ऑल राइट सो जस्ट यू वांट, तो कई बार क्या होता है कि हमने जैसे ये हेडिंग ऐड की जिसका ब्लैक वो है और ये है, मैंने इसके नीचे जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, प्रॉब्लम ये हो गई, ये इसने ब्लैक कर दिया। मैं इसको जाके कहूंगा नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं ये मेरा हेडिंग नहीं है, मेरे को तो नॉर्मल जो नीचे वाला फॉर्मेट है वो करो, ओके right? So that is the format option which will appear whenever you insert a new column or new row. सेम आपका क्या होता है कि आप इन रो की विथ, सॉरी रो की हाइट या कॉलम विथ यू कैन कंट्रोल। सो यहाँ पर आप करोगे तो रो हाइट दिखाई देगा आपको। हम्म सो इफ आई गो इनटू रो हाइट 14.4 दिखा रहा है, मैं इसको 25 करना चाहता हूँ, इट विल चेंज द रो हाइट। ओके सेम आप कॉलम विथ का करना चाहते हो, सो आई विल सेलेक्ट ऑल दीज फोर। यहाँ पर मैंने देखा यार सबका कॉलम विथ जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, सो आई सेड ओके कॉलम विथ और सबका आप सेम कर दो 25, तो सबका ओके सेम हो गया। सेम हो जाएगा ओके हाँ राइट, एंड सपोज आई सेड ओनली 10, सो सबका, सो आप क्लब करके दैट मीन्स आप ज्वाइन करके या ग्रुप करके भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू द एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल रो और इंडिविजुअल कॉलम, आप क्लब करके ग्रुप करके भी कर सकते हो, ओके right? हाँ जी Now here we have hide or unhide options. So hide means if you want to hide any column, so मैं चार को select करके and then I hide it, so मैं hide कर ओके सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पर भी इसको hide कर सकता हूँ। So you can hide or unhide your columns or rows, right? ओके Control Z option जो होता है, Control Z is undo options, वो आप anytime you can use it। ठीक है, तो मैं Control Z कर रहा हूँ so that जो मेरे लास्ट एक्शन है वो सब रिपीट हो जाएंगे, ओके राइट। तो ये आपका Control Z हो जाता है। Similarly, if you see these are known as worksheets, right? हम राइट जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वर्कबुक, और ये जो वर्क हैं we have a multiple worksheets हो सकते हैं हमारे पास। Now if you right click on this you will show different options, right? So you can change the tab color also, that means अगर आपको different suppose करो आपको किसी पर्टिकुलर पे बहुत ज़्यादा maybe it's a very critical kind of first sheet जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, देन यू कैन चेंज द कलर टू रेड। ओके यार ये वाला मुझे एवरी टाइम आई हैव टू चेक दिस स्लाइड, बाकी ओके ऑटोफिल कोई मैं चेक करूंगा नहीं करूंगा तो भी चलेगा, सो इट्स अ ग्रीन काइंड ऑफ। या सपोज यू आर रिव्यूइंग द शीट्स, सो ऑटोमेटिकली यू कैन कि यार ये मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक्स मुझे पूछना है किसी से, सो यू कैन गिव द ऑप्शंस, कलर्स, राइट। जस्ट अ मिनट, सॉरी। Right, so you can give the tab colors. Now if you see this move or copy options, so move or copy, that means you can want to move or copy the sheet into another Excel workbook। so अभी मैं suppose करो मैं एक नया workbook open करता हूँ फाइल में, so मेरे पास दो workbook हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, right? Now I said कि मैं इसको paste option को मैं मूव करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इट विल आस्क यू कि आपको किस वर्कबुक में इसको मूव करना है, कॉपी करना है। तो बेसिक एक्सेल ये वाला, तो ये वाला है। सेकेंड वन जो है हमने ये क्रिएट किया है। नाउ वुड यू लाइक टू क्रिएट अ कॉपी और यू वांट टू मूव इट,
सो मूव करने का मतलब है पेस्ट ऑप्शन अगर मैंने मूव किया तो वो यहाँ से हट जाएगा. सो इफ आई हाँ सेड ओके, सो पेस्ट ऑप्शन वहां से हट गया है और इस नई शीट में ओके ऐड हो गया. ओके एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी कि नहीं उसमें भी रहे और यहाँ पर भी रहे, देन यू हैव टू मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, चेंज द शीट जहाँ पर आप करना चाहते हो, एंड देन सपोज फ्री स्पेन से पहले कॉपी कर दो इसको. ओके, सो अब वो यहाँ पर भी है पेस्ट ऑप्शंस और पेस्ट ऑप्शन हम्म यहाँ पर भी हम्म है. सिमिलरली यू कैन हाइड इट, दैट मीन्स आपने इसको हाइड किया, सो हाइड हो जाएगी. इफ यू वांट टू अनहाइड इट तो आप इसको अनहाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस. ओके Right? So you can hide or unhide the sheet, you can hide or unhide columns, rows. Yeah. Right? Okay, now in the right hand side bottom, there is a zoom option, right? So you can, if you want to zoom your sheet, you can zoom it. So that option is also available. Then if you go into the insert menu, then we have a different options like ये वाला हम डिटेल में करेंगे. So I'm ठीक means ये हम पूरा डिटेल में चलेगा इसका. तो है now pictures, you can insert a picture. That means if you want to insert any picture from this device, you can select and go into your pictures, and then you can select any one. So automatically it will create a it will just okay this, and then it will insert a picture for you, ओके right? Similarly, if insert में अगर आपको कोई shapes insert करना है, then you can insert any shape. So suppose I said मेरे को ये use करना है, use it. ओके Now when you add any shape, automatically it will add a new tab, shape format. ओके यहाँ पर आकर ओके आप इन शेप के साथ यू कैन प्ले विद इट. दैट मीन्स अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, इसका आउटलाइन चेंज करना है, सपोज आई सेड दिस, इसी आउटलाइन का आपको ऐसे करना है. अगर आपको शेप में कोई इफेक्ट डालना है, सो लाइक दिस, so that you can do that. So insert options में आपको ये shapes, इसी तरह से स्मार्ट आर्ट, अगर आप हायरार्की बना रहे हैं या कोई प्रोसेस चार्ट आप शो करना चाहते हैं, then you can use it. So just suppose प्रोसेस में मुझे दिखाना है, then I can use it. So like this. So उसके बाद now the best part is, आप जब इस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको एक एरो दिखेगा. If you click on this, so automatically it will show you. So you don't have to touch this, right? Otherwise ये थोड़ा सा ना यहाँ पर इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. यहाँ पर you can easily manage. So I said step 1 like this. Then I will come to this step 2, step 3. Now if you want to add one more, you can add this in step 4. इस तरह से if you want to create any process document or process को दिखाना चाहते हो, hierarchy show करना चाहते हो, then that are also available within Excel. अगर आपको जैसे suppose hierarchy दिखाना है, then you can show hierarchy. So suppose I said this. And then I said, okay, CEO, like this. You can create like this. Okay. And then if you go into the smart art design, then you can change the format. So it depends on you. You have to play with that. Okay, what different options are available. अगर आप change color करना चाहते हो, this. So it's on you. So the purpose is just to show that
all these features are available within Excel. You don't have to use any other tool कि आप Visio use कर रहे हो या कुछ और tool use कर रहे हो. You can directly create within the Excel. So there are Okay. different options available. Mm-hmm. Right? ये सारे हम डिटेल में करेंगे. Mm-hmm. The text option, that is word art, is also available. That means if you want to add some text heading, then you can directly add it. Oh, okay. Again, whenever you are adding any shape picture, automatically it will add a new tab, shape format. और फिर shape format के according आप मतलब इसमें कुछ fill करना है आपको, वो सब कर सकते हो. Okay. यहाँ पर आपको text थोड़ा different use करना है, ऐसा कुछ. So it's on means अगर आपको Excel में कुछ अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो Excel को, so instead of कि आप यहाँ पर प्ले करो कि मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कौन सा कलर फिल करें, you can directly play with insert command और यहाँ पर ये टेक्स्ट में वर्ड आर्ट में यहाँ पर बहुत Word कुछ art. उपलब्ध है. Mm-hmm. That you can do, right? Hmm. Okay, now come to the autofill. Now autofill is one of the good option in Excel. So अगर आपने remember अगर आपने use किया है, जैसे मैं 1 और 2 डाल देता हूँ and then I select this and then when I go into the bottom right, so मेरा जो cursor है it will change into the plus वाला tab Right. को, and then if I drag it, automatically it will follow the pattern. Hmm. So that is called autofill option, right? Okay. Now when you go in this, it will show different autofill options. Okay. By default, because it is following a pattern, so fill series is selected. Fill series says that it will follow a pattern. So 1, 2 is a pattern. So that means every time it will increase the number by 1. But suppose I don't want it, I don't want that. I need to copy the cells. So that means if I set copy cells, so it will copy 1 and 2 again and again. Okay. Okay. Now, if you go into this, suppose I said 1, 2, 3, 4, and then I copy it. Now it is copying the series, but I don't want to fill the series. I fill only the formatting. Then it will fill the formatting, not the text. Or Okay. if you want to fill the number, but without any formatting, then also you can do, Okay. right? And the last option is flash fill. जो इसमें clear नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, right? So these are the different option. ये तो हुआ आपका नंबर के साथ, right? अगर मेरा नंबर केवल सिंगल है और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इट विल कॉपी द सेम नंबर, क्योंकि उसको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो 1 1 फिल कर देगा. बट जहां पर भी उसको कोई पैटर्न दिख जाएगा कि मेरा 10 के बाद 20 आ रहा है, एंड देन इफ आई यूज दिस फ्लैश फिल. नाउ रिमेंबर, जब आपको कोई पैटर्न को कॉपी करना है तो आप दोनों सेल को कॉपी करोगे एंड देन मूव योर कर्सर टू द bottom right so that your cursor will change into the plus sign. Now drag it, तो automatically वो उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा. Okay. All right. Right? Now हाँ जी. इसके बाद क्या है कि ना सपोज आपने यहाँ पर ये तो हमने नंबर्स के साथ किया है ना. इधर इट कैन डू विद द नंबर्स या फिर डेट के साथ भी कर सकता है. सो सपोज आई सेट फर्स्ट जैन 210 और सपोज मैं 21 ही कर देता हूँ, एंड देन आई सेट 0 टू ओके. सपोज अगर इसको ऐसे ट्रैक करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली वो आपका डेट चेंज कर देगा. नंबर्स के केस में ये कोई पैटर्न नहीं करता, बट डेट के केस में ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज कर देगा डेट को. ओके. सो अगर मैं इसमें जाता हूँ देन इट विल से फिल सीरीज, राइट. अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं 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 मुझे तो कॉपी करना था, मुझे कोई सीरीज नहीं फिल करनी थी, देन आई विल से कॉपी सेल्स. सो ऑटोमेटिकली सेम डेट सब में कॉपी हो जाएगी. ओके. राइट.
नाउ अनदर थिंग इज, जब हमने नंबर्स के साथ किया था वहां पर केवल हमें 5 ऑप्शन दिख रहे थे, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो देखो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। तो हाँ कॉपी जी, सेल्स मेरा नंबर के साथ भी था, फिल सीरीज मेरा नंबर के साथ था, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये चारों ऑप्शन वहां पर थे। हाँ जी। नाउ आई विल कम टू द फिल डेज। नाउ फिल डेज में ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज द डेट बाय 1 डे, ओके। राइट। अगर इफ आई यूज फिल वीक डेज, दैट मीन्स इसमें ये वीकेंड्स की जो डेट होंगी उसको रिमूव कर देगा। सो इफ यू सी, ओके, सेकेंड और थर्ड जन गायब हैं, 9th और 10th गायब हैं, 16th और 17th गायब हैं। सो इट इज फिलिंग ओनली द वीक डेज, ओके। राइट। इफ यू गो इनटू द फिल मंथ्स, सो ये अब जो डेट फिल करेगा ये सारा का सारा मंथ के अकॉर्डिंग करेगा, एक मंथ के गैप पे। सो इफ आई एम सेलेक्टिंग फिल डेज, it will increase the date by 1 day. If I am selecting fill week, fill uh, week, this one, fill week, फिर sorry, fill months, मंथ, so it will increase तो the ये date by 1 month. ओके, हाँ जी। And if I select fill years, so it will नेक्स्ट increase ईयर, the date by 1 year. ओके, So autofill feature, that's why it's very powerful feature, because you can copy the cell. You don't have to type each and everything, right? So if you know these feature, automatically you can fill your data very quickly. कि मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना है। दैट्स व्हाई वी टेल यू इन डिटेल दैट पेस्ट ऑप्शंस जो है, मर्ज के जो ऑप्शंस हैं, ये ऑटोफिल के जो ऑप्शंस हैं, उस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लो, सो दैट एनी टाइम अगर आपको एक्सेल में डेटा के साथ प्ले करना है, तो अगर आपको ये पता होंगे ऑप्शन, तो क्विकली क्विकली करते जाओगे आप पॉपुलेशन। राइट, यू राइट। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ क्या करते हैं कि भाई जो आपका ड्रैग करने का ऑप्शन है, वी जस्ट सिंपली डू दैट, मतलब नंबर्स पे हमें समझ हाँ, में नहीं आता था, बस सिंपली ड्रैग किया और ओके। राइट। हम्म, सो ओके, नाउ इसके अलावा एक्सेल विल गिव यू, ये जो टेक्स्ट होता है ना, जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अल्फाबेट्स, इनका कोई फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं है। ये अभी आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कर रखा है, अदरवाइज इनका कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता, राइट। तो मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट जो करता है वो इनके साथ कर सकता है, कि संडे मंडे ट्यूसडे। एक्सेल आपको ओके, वो फंक्शनैलिटी देता है कि अगर मैं संडे मंडे ऐसे कर दूं और इसको ड्रैग करूंगा ना, तो ये मुझे दे देगा। राइट, ओके, या फिर मैं मंथ के साथ करूंगा, जैन फैब ऐसे करूंगा, आप पूरा भी लिख सकते हो, जनवरी फरवरी पूरा। ये देख रहे हो, ये वापस से ऐसे आपको करना है, रिपीट कर दो, दैट यू कैन डू। बट नॉर्मली ये यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसके साथ नहीं करता है। बट सपोज आपका कोई एक लिस्ट है जो आप बहुत बार बार रिपीट करते हो। सपोज करो मैंने कोई टावर नेम्स बना रखे हैं या कोई लिस्ट बना रखी है ना, और वो आपको बार बार टाइप करनी पड़ती है, देन यू कैन क्रिएट द कस्टम ऑप्शन आल्सो। आप कस्टम ओके, लिस्ट बना सकते हो, राइट। तो अगर आप फाइल एंड देन गो इनटू द ऑप्शंस एंड देन लेट मी चेक वेयर एडवांस्ड and this one, edit custom list, एडिट, ओके, एडिट कस्टम लिस्ट, right? So अगर मैं आया कहाँ से हूँ, फाइल में, ऑप्शंस, नाउ आफ्टर दैट एडवांस्ड, और एडवांस में आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके चले जाओ। सो यहाँ पर मेरे को एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। हाँ when जी, you click on this, so it will open this list, right? and suppose मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली लिस्ट मिलेंगी, मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, ये ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। एंड ड्यू टू दैट हम इसका लिस्ट में यहाँ पर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको ऑटोफिल में कर लेते हैं, राइट। सपोज आपका कोई एक नया लिस्ट आ रहा है, आई सेड कि यार मेरा ABCD सपोज चलता है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे कर सकता हूँ। सो ये न्यू लिस्ट पे सेलेक्ट कर रखा है मैंने, and then I said A, comma B, C, D, E, F, G, H,
सपोज मैं आई तक लिख रहा हूँ एंड देन आई सेट ऐड, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ओके ओके, नाउ यू हैव क्रिएटेड योर कस्टम लिस्ट। दैट मीन्स अगर मैं अब ये ABC लिखूंगा और फिर मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा आई तक ले जाएगा, ओके। आई क्योंकि हमने आई तक लिखा है तो वो आई तक ही। क्योंकि हमने आई तक, राइट। हाँ। आप उसको जेड ओके तक कर दो, जेड तक ले लेगा आपका, ओके। राइट। तो आप इस तरह से अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हो। सो डिफरेंट टीम टावर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आपको बार बार फ्रिक्वेंटली अपने उसमें यूज करना है, सपोज आपके मेडिकल इंडस्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उसके आपको लिस्ट बनानी होती है, सो यू कैन क्रिएट अ कस्टम लिस्ट ऑफ दैट, सो दैट आप एक दो नाम टाइप करो, उसको ड्रैग करो, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। बार बार आपको किसी मैपिंग में या किसी लिस्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं है यार क्या वो 10 नाम कौन कौन से हैं वो। ओके राइट। सो इट विल मेक योर वर्क इजी फास्ट, हम्म राइट। सो हम्म दैट इज कॉल्ड ऑटोफिल फीचर्स। यहाँ पर आप इस तरह से ऑटोफिल फीचर्स को यूज कर सकते हो। क्लियर? हम्म ओके। नाउ एक है फ्री स्पेन ऑप्शन होता है। सो सपोज इफ योर एक्सेल फाइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेटा, सो सपोज जैसे ये नेम, सिटी, कॉलेज एंड देन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। मैं इसको हम्म स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफी ऑप्शन अवेलेबल है, बट इसके साथ सपोज प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये 1037 किसका था। सो आई विल गो देन अगेन हियर एंड देन ओके ओके ये सतीश का है विच इज फ्रॉम जयपुर, SFD कॉलेज, ये उसका डेटा है, हम्म हम्म राइट। सो मुझे बार बार ये जो स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, ये जो स्क्रॉल हम्म करना पड़ रहा है, इफ यू वांट टू रिमूव दैट कि नहीं नहीं मुझे स्क्रॉल नहीं करना, मुझे हम्म हमेशा ये 3 कॉलम विजिबल रहे, इन दैट केस जहां पर भी आपको जैसे सपोज आई वांट दीज 3 कॉलम्स मस्ट बी विजिबल एनी टाइम, तो आप इसके हम्म बाद के सेल को सेलेक्ट कर लो एंड देन गो इनटू द व्यू and then freeze panes and then select this freeze panes. So जैसे आप ये ओके। freeze pane करोगे that means आपके ये columns freeze हो जाएंगे। that means अब मैं जब scroll करूंगा तो मेरे जो first 3 columns हैं वो freeze हो चुके हैं। ओ तो इससे बहुत ईज हो जाएगा। मुझे एक्चुअली जो बार बार वहां लेके जाना पड़ रहा था फिर उसको यहाँ आके चेक करना पड़ हाँ रहा था। ओके। राइट। अब मुझे पता है ये 1754 मैं यहीं पे चेक कर सकता हूँ। सो मैं कितना ही स्क्रॉल कर लूँ आई कैन डू दैट। सो दैट इज दी freeze panes ऑप्शन जो हम यूज करते हैं हम्म ताकि आप किसी भी कॉलम्स को या रोज को आप फ्रीज कर लें। क्लियर? हम्म सो दीज आर दी फ्यू बेसिक ऑप्शंस जो हम एक्सेल में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अब इसमें हम्म जो आपके ये इंसर्ट में है, फॉर्मूलाज में है, डेटा में है, ये हर एक का हम डिटेल में विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा ऑप्शन कैसे कैसे काम करता है, हम्म राइट। पर दीज आर दी जो मैंने आज बताया आपको ये सिंपल है। बाकी आई थिंक रेस्ट जो है जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका अलाइनमेंट का है तो आई थिंक दैट इज क्लियर हम्म फॉर यू टू यू, राइट। हाँ ये ये मुझे तो लेफ्ट हाँ अलाइन ये करना है, हाँ ये हम्म, सेंटर में अलाइन करना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें नहीं नहीं इसमें क्या नहीं क्लियर है नहीं लेकिन है। फ्रीज पेन का जो है वो बहुत यूज होता है मेरे लिए क्योंकि जो हाँ मेरा डेटा होता है ना पेशेंट्स का वो बहुत बहुत ज्यादा बल्की होता है। मतलब उनके राइट। लाइफ लॉन्ग चलते आ रहे डिजीजेस चल रहे होते हैं ईयर बाय ईयर फ्रॉम द टाइम दे आर बॉर्न। फॉर एग्जांपल हम्म 70 ईयर का पेशेंट है तो वो 70 ईयर तक उसको क्या क्या डिजीज हुआ है वो पूरा आता है तो ओके अब उसके लिए बार बार स्क्रॉल करना इट वाज हाँ वेरी डिफिकल्ट। राइट 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 राइट। ओके सो हम्म व्हाट आई विल डू आई विल सेंड दिस शीट टू यू, डू द प्रैक्टिस हम्म, ताकि ये आपके हाँ साथ जी अवेलेबल रहे, राइट। हाँ जी एंड हाँ देन जी आई विल डू नेक्स्ट क्लास टुमारो, राइट। तो ये राइट। आपका बेसिक फीचर का आप एक बार गो थ्रू कर लो, right? And ठीक then है we will start from the next topics from tomorrow. ठीक है। अच्छा सर मैंने ना एक चीज़ और बताई थी कि वीकडेज़ को थोड़ा पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही है बिकॉज़ मेरी शिफ्ट जो है 10 ओ क्लॉक से मॉर्निंग में स्टार्ट होके 8:30 एट द नाइट एंड होती है और बैक टू बैक 8 आवर्स Oh, की ट्रेनिंग है अभी। तो
इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं शायद वीकडेज में मैनेज कर नहीं पाऊंगी अभी, बिकॉज मेरे को ना कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग पे रहना पड़ता है, 101 ट्रेनिंग चल रही है मेडिकल्स में। अच्छा, तो ठीक है, तो हम इज इट? वीकेंड्स ही रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सैटरडे संडेज ही रखेंगे। हाँ जब जी, भी आपको पता चल जाए कि हाँ की कोई छुट्टी है आपका भी, और तो जस्ट वी विल डू ऑन द हाँ वीकडेज जी, आल्सो। हाँ जी, राइट। हम्म, रेस्ट वी विल डू ऑन वीकेंड्स, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। ओके, या, हाँ जी, थैंक्स, बाय। ओके, थैंक यू सो मच।